pleasure to welcome the honorable guest. I feel honored to share the achievement of Radiant Star achievers today. I'm very glad to host this event for the very second time. Wholeheartedly, I want to say thank you to Ms. Usma and Mr. Rahmatullah Momen, the organizer, I must say the proud organizers and the backbone and the trendsetters of 7th Icon of the Nation Awards. And today is the 7th Nation Icon Award. So I want everybody to please give a huge round of applause for Ms. Usma and entire team. I need some energy. There's no energy. Please give a huge round of applause for the entire team. Proceeding further, the Icon of the Nation Award is having so many categories. So I will just briefly tell that which categories we will be covering today. We will be having the Tilawat, the Naqwa, film, TV, radio, music, sports, business world, dancer, journalism, and a lot more categories. So hold your hearts because there are so many exciting things coming up in this event. In advance, I want to say congratulations to CEO Icon Foundation, Ms. Usma Sabir, for the successful event and for the past 7 successful events. And I also want to say congratulations to Mr. Rahmatullah for the past 7 Icon successful awards. So let's commence our event with the name of Allah, the most merciful, the most precious, and the most beneficial. For Tilawat the Quran, I would like to invite the Honorable Mr. Tariq Yaqub Hussain. Please come on the stage and do the Tilawat. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر صدق الله العظيم.
what a beautiful voice. Let's proceed further. And now I would like to invite Mr. Hamid Raza for a beautiful naat. Mr. Hamid Raza, please come on the stage. नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन कोई सलीका है आरज़ू का कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी मेरी बंदगी है Allah, and such a beautiful voice, mashallah. Thank you. You can stand here. Thank you. Let's move forward and now hold your hearts, because this is the time that I would like to invite my co-host. But before inviting him, I really want to say a few words about him. Mashallah, he is internationally recognized, well-known, multi-talented, multi-award winning, very dedicated and a hard-working person. I and many of you is proud of him and has overcome challenges and completed many successful years in the media industry. He's a film director, he's a brilliant actor, he's a wonderful writer, a great producer, and a mentor too in Pakistan showbiz. Currently, you're watching his drama Dobara on Hum TV, Lamhe at A+, and Kab Mere Kehlaogi on ARY Digital. Give a huge round of applause for none other than Mr. Aslam Sheikh. Please come on the stage, Mr. Aslam Sheikh. Give a huge round of applause, please. First of all, thank you very much. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum inna atayna kal kawsar fasal rabbika wanhar nishani haqqa wal abtar. आप तमाम मौसम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत चाहत और खुलूस के साथ आप लोग जो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। एंड थैंक यू मेरे पाकिस्तान की वो डिग्निटीज़ आज यहाँ इस हॉल में मौजूद हैं जिन पर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर हर शोबे ज़िंदगी में इन्होंने अपना एक नाम और मुकाम बनाया है। मैं दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करता हूँ। किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक़ हो, मीडिया से हो, बिज़नेस से हो, स्पोर्ट्स से हो, NGO से हो, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं सबको वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे दो हाथ हैं, मैं आपके लिए क्या करूँ, अपने लिए क्लैप कर दीजिएगा। आइकॉन अवार्ड, द 7th आइकॉन ऑफ द नेशन अवार्ड 2022। जब इसका फर्स्ट आइकॉन अवार्ड हुआ था, उसकी एक दिलचस्प बात आज बता दूँ कि मैं रहमतुल्लाह मेमन साहब और उस्मा साबिर को नहीं जानता था। हमारे मीडिया में बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर होते हैं जो हम आर्टिस्टों को मुख्तलिफ जगह पे पेश कर देते हैं और उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। एक साहब मेरे पास आए, कहने सर अल्लाह ताला ने आपको बड़ा नाम और मुकाम दिया, मैं एक अवार्ड करना चाह रहा हूँ, आप मेरी मदद करेंगे? मैंने कहा जी बोलिए। कह लें कि मैरियट में एक आइकॉन अवार्ड के नाम से मैं करना चाह रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट किया है। उन्होंने अपनी PR से उस वक्त ज़ेबा बख्तियार साहिबा, हुमायूं सईद साहब, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा और बहुत सारे लेजेंडरी को उन्होंने जमा किया और मुझसे कह रहे हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई हैव नो मनी। मैंने कहा फिर क्या करना है? कहले सर मैं आपकी पेमेंट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा, अगर पाकिस्तान की डिग्निटीज़ आ गई उनको इज्जत देनी है, मेरे चंद अल्फाज उनके लिए बहुत बड़ी बात होंगी, मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैंने वो प्रोग्राम्स किया इसी मैरियट में और उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कार्ड्स देते हैं। जब आप घर में जाते हैं तो उसको पता नहीं होता कि ये कौन है। मैंने रात को जाके जब कार्ड देखा तो पता चला वो प्रोग्राम उनका नहीं था आइकॉन अवार्ड, वो अवार्ड था रहमतुल्लाह मेमन उस्मा साबिर साहिबा का। उस पर लिखा हुआ था CEO आइकॉन अवार्ड एंड गैजेट मैगजीन की CEO। आई एम शॉक, व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ मेरे साथ? और ऑर्गेनाइज करने के लिए खालिद साहब
मैंने इनको कॉल की और उस दिन से आज तक मरते दम तक मैं आपसे सॉरी करता हूँ कि किसी ने मुझे मिसयूटिलाइज किया था और आपने कराची के अंदर एक इतना बड़ा अवार्ड रखा, क्योंकि अवार्ड खत्म हो गया, अब सिर्फ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं। मेरी खुश नसीबी है, यहाँ कुछ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिस पे मुझे फ़ख्र है वो यहाँ मौजूद है। मेरी एक कॉल के ऊपर वो हर जगह आ जाते हैं। अल्लाह इनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, और इनको बहुत नाम और मुकाम दे। मैं आज इस बात को क्लियर करने के लिए आया था और मैंने हमेशा आपके प्रोग्राम्स के लिए किसी भी शहर या मुल्क में हूँ फ्लाइट लेके आया हूँ। आज 7 में ये कहते हैं कि जी एज ए कंपेयर एम्बेसडर आप हमारे साथ हैं, तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने यहाँ दी हुई हैं और यहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे लोग कि जिसमें फिल्म, टेलीविज़न एंड रेडियो, म्यूज़िक, बिजनेस, स्पोर्ट्स, NGO, लाइफ टाइम, कल्चर, कॉमेडियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डांसर, जर्नलिज्म, करंट अफेयर एंड पोइट, शायरी। इसमें पाकिस्तान के अंदर चूज़ करना और उसके बाद जब आप अवार्ड करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि प्रेशर भी होता है कि हम आपको, मैं भाई सच्ची बात करता हूँ, घबराना नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। जब बारिश आता है तो पानी भी आता है, जब असलम शेख आता है तो बहुत सारे अल्फाज भी आते हैं, ठीक है ना। और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। और आजकल इस्लामाबाद में कहाँ पे टाँक रही है आपको पता है, इस वक्त ये है पोजिशन, ये तो कहाँ पे नहीं टाँकनी चाहिए इस वक्त। बहुत सारे लोगों की टांगे कांपनी चाहिए, हम कहाँ पे नहीं टांगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर होता है। रहमतुल्लाह मेमन साहब पे और उज़मा साहब भी ये मुझे कॉल करते हैं कि जी क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के भी लोग हैं कि जी आप इनको अवार्ड दे दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो किस बिहाफ के ऊपर दे दिया जाए। इसी तरह पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होता है, तो इस प्लेटफॉर्म से बेशुमार लोगों ने आवाज़ भी उठाई और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। मुझे भी 35 साल हो गए। शेखी साहब और खालिद अनम साहब, लाला साहब मेरी भी फाइल पहुँचा दें कि मैं भी वहाँ पर पजीराई हो जाए, नहीं तो शायद ये रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे मरने के बाद मेरी कबर पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लगा दीजिएगा। मैं भी पाकिस्तान की एक पहचान था। आप लोग आवाज़ निकालेंगे, जैसे इमरान ने लोगों को रोड पे लेकर आया, आपको रोड पे लाऊंगा कि असलम शेख को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाए। तो इंशाल्लाह अगले साल शायद मेरा भी नाम आ जाए उसमें। लेकिन मेरे लिए आइकॉन अवार्ड, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि इंडिया में काम करने से आइकॉन नहीं बनता। इंडिया में पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं और हॉलीवुड में ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं। पाकिस्तान में काम करो और आइकॉन बनो, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान में काम करके आप आइकन बने। हम जाते हैं कैटेगरी की तरफ और इंशाल्लाह हम इसमें आगाज़ करेंगे। अच्छा, हदील, मैं समझा अदील, तो मैंने कहा भाई ये बता दें, तो मैंने इनको ही करके, शी करके नहीं बुलाता, मैं इनको ही करके बुलाता हूँ। ही इज़ हदील। ये तो मेरी तो टांगें नहीं काँपेंगी, क्योंकि यहाँ इनके साथ मैंने बड़ा टाइम गुजारा हुआ। ये सब मेरे दोस्त हैं और ये सब जानने वाले हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। Exactly. Thank you so very much, sir. We are proceeding further and speeches का जरा सिलसिला शुरू करते हैं and उसके बाद हम अपने award categories की भी तरफ चलते हैं। I would request, Mr. Rahmatullah Menon, the media advisor and the backbone of the Icon Award, to please come on the stage. आपके पास लिस्ट में, मेरे पास भी नहीं था, वहाँ भी नहीं था। एक्चुअली प्रोग्राम का आगाज़ करने के साथ हम एक कंट्री में रहते हैं, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, तो प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए हमारा आगाज़ होता है कि हमारे पे लाजिम और मलज़ूम है। जो हम छोटे से फिल्म देखने जाते थे तो होता था कि फिल्म शुरू करने से पहले आप पर लाजिम है कि आप अपनी सीटों से खड़े हो जाइए और कौमी तराना बाज़ सुनिएगा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, नेशनल एंथम। मार दिया पहले।
सबसे पहले मौजूद आपके सामने ये हमेशा ही होता है हमारे जो क्या कहते हैं कि जब कौम की एक नफ्सियात बन जाए कोई चीज़ भी तो वो फिर जुर्म नहीं चलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी क्योंकि नफ्सियात बन गई कि हम काम लेट से शुरू करते हैं तो अब मुझे भी माफ़ी मिलनी चाहिए। तो उसके साथ असलम साहब आपका शुक्रिया। ये ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे मौके आते हैं कि लोग समझते हैं कि हम अपना काम निकाल लेंगे, चीट कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला का तो नाम बड़ा है, वो हमें कहीं न कहीं से सुरखरू कर लेता है और कहीं न कहीं हम सुरखरू अल्लाह ताला के हुजूर हो जाते हैं, क्योंकि चीटर की ज़िंदगी एक दिन की ज़िंदगी होती है। और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है और आपके सामने कि आज 7 साल से हम यहीं खड़े हैं, इसी स्टेज पे खड़े हैं और उनका नाम और निशान नहीं। तो यही हमारी कामयाबी है। ये अवार्ड जब हमने शुरू किया था तो ये सोच के किया था कि यार यहाँ पे कई अवार्ड लोगों ने शुरू कर रखे हैं जो कहता है बस पैसे पकड़ो और अवार्ड दो, पैसे पकड़ो अवार्ड दो। हमने कहा कि एक ऐसा अवार्ड होना चाहिए जो कम से कम सिफारिश पे ना हो और पैसों पे ना हो। वो अवार्ड ऐसा अवार्ड हो जो लोग डिजर्व करते हैं, जिनको जिंदगी में आपने भुला दिया है, उनको आप लेकर आओ, उनको बताओ, इस कौम को बताओ कि आपके आइकन असल में यही लोग हैं। और हमने इसी बुनियाद पे इसको आइकन को स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह 7 साल हो गए। लेकिन मुझे खुशी है ऐसे दोस्तों को हमने यहाँ पे अवार्ड दिया और यही स्टेज पे आके उन्होंने कंप्लेन की कि आपने तो हमें याद किया लेकिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में हमें याद नहीं किया जाता। और मुझे खुशी है उसमें से भी 3-4 को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हमारे अवार्ड के बाद मिल चुका है। तो ये इस अवार्ड की क्रेडिबिलिटी है कि हमने उनको पहचान दिया कि वो असल आइकन है, वो असल हीरो है, वो अवार्ड के हकदार है। लेकिन हुकूमत को बाद में होश आया कि हाँ इनको देना चाहिए। असलन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बार आपकी है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इस स्टेज से जिसकी कंप्लेन गई है वो सेकंड ईयर अवार्ड में नॉमिनेट होता है। तो अब आपकी कंप्लेन चली गई है और नेक्स्ट में आप इंशाल्लाह ताला नॉमिनेट होंगे। सबसे जो खुशी की बात है वो ये हमने कोरोना में काफ़ी सफ़र किया, पूरी दुनिया ने सफ़र किया, हमने भी किया और ये हमारी तकरीब इस तरह नहीं हो सकी जिस तरह होनी थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कोरोना मुल्क से चला गया है और हम ये तकरीब करने के काबिल हुए हैं। आज बहुत सारी अहम शख्सियात इस अंदाज में मौजूद है जिनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। बहुत सारे लोग हैं। मैं अपनी तकरीर इसलिए मुख्तसर कर रहा हूँ कि हम ऑलरेडी लेट जा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आज की तकरीब को आपके जो मेहमान आए हुए हैं, जो आइकन आए हुए हैं, उनको आपके सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। ठीक। Thank you so very much, sir. And जिस तरह से सर ने बताया कि since last 7 years, माशाल्लाह, they are organizing this event. And ये एक छोटी चीज़ नहीं होती, because बहुत सारे हम अवार्ड फंक्शंस देखते हैं और हर जगह अवार्ड फंक्शंस हो रहे होते हैं, बट समझ में नहीं आता कि कौन सा अवार्ड लेके you should feel proud. But I'm sure कि this is the award and इस तरह के और भी कुछ reliable awards हैं जिनको लेते हुए हमारे जितने भी यहाँ पे stars बैठे हैं, they feel really honored. Let's move onwards and हमारा एक और important speech है and I really want to invite. She's extremely beautiful. First, I really want to say very talented, and I call her the trendsetter. Her goal is basically to connect with the audience and build the brand image, to engage the audience in the program, to promote the business among the audience, to build the brand value. And yes, I am talking about none other than Ms. Uzma Saber, the CEO of Icon Foundation. Please give a huge round
guests, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काफ़ी अर्से के बाद आपके सामने हूँ। कोविड की वजह से पूरी दुनिया जहाँ मुतासिर हुई वहीं सर इस वक्त नहीं लाएगा। तो मैं देर से आइकॉन अवार्ड की तकलीफ मुनक़िद करने पर माफ़ी चाहती हूँ। आज माशाल्लाह से हमारे 7 साल कंप्लीट हुए और 7वां इवेंट ऑर्गेनाइज करने पर मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका थैंक यू भी करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया और यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं खुशी तौर पर अपने मेंटोर और अजीम बाप का किरदार अदा करने वाली शख्सियत रहमतुल्लाह मेमन साहब का जिक्र करना ज़रूरी समझूंगी क्योंकि ये इनकी वजह से ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो सका। अदरवाइज मेरे से अब मुमकिन नहीं हो रहा था कि मैं इसे ऑर्गेनाइज करूँ प्रॉपर्ली क्योंकि कोविड ने मुझे बहुत ज़्यादा लेजी बना दिया था। तो थैंक यू वेरी मच शहमा सर, आपकी वजह से ये प्रोग्राम इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। हम बेसिकली मुल्क से आइकॉन तलाश करके इनको इजाज़त देते हैं, कोई एहसान नहीं करते, मगर इनकी काम की वजह ये इनका हक है कि इनको समाजी सतह पर उजागर किया जाए ताकि इनका काम यादगार बन जाए। हम तो सिर्फ आटे में नमक डाली जितनी पजीराई करते हैं, इनका काम इससे भी बड़ा है। इन दोस्तों से माजरत जिनका आज अवार्ड में नाम नहीं आ सका, इंशाअल्लाह जल्द इनको भी अवार्ड मिल जाएगा। अब मैं यौम पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करूँगी कि इस दिन का इंतखाब हमने अवार्ड के लिए क्यों किया। असल में हम कौमी हीरोज़ को कौमी दिन पे एजाज़ देना चाहते थे, मगर कौमी दिन पे हमारे लेजेंड बहुत ज़्यादा तकरीबात में मदद होते हैं, जिसकी वजह से अवार्ड तकरीब में शरीक होने से कई और प्रोग्राम छोड़ने पड़ते हैं। दूसरा ये कि हम इस मुल्क के असास को संभालना है हमें। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का सासा हम संभालें अपने आइकॉन अवार्ड्स के ज़रिए। 1947 में ये पाकिस्तान एक नया मुल्क था, खजाना खाली था, अफरा तफरी थी। भारत से 65 लाख मुसलमान पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। आज पाकिस्तान से सरकारी अफसरान और तजर्बाकार मुलाजमीन के भारत चले जाने और यहाँ पाकिस्तान में इन इदारों और महकमों से मुताबिक रिकॉर्ड ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात थी। हमारे इस वक्त के कायदी और अजीम लीडर कायदे आज़म ने हमें इन मुश्किलात से निकाला। हमने देखा और आप भी देख रहे हैं कि हम आजकल किन हालात से गुजर रहे हैं। कायदे आज़म के पाकिस्तान में बहसियत हम लोग कमज़ोर होने लगे हैं। सियासी होने इस मुल्क को खोखला करने के डर पे हैं। 28 मई वो तारीखी दिन था जब हमने भारत के मुकाबले एटमी धमाका करके पाकिस्तान को मजबूती की वजह बनाया, लेकिन दूसरी जानिब हम पर अंदरूनी बैरूनी दुश्मन कुछ इस अंदाज से हमला आवर हुए और इन हमलों में हम बहसियत कौमों मुतवातर नुकसान का शिकार हुए। तो इसकी बड़ी वजूहत ये भी रही कि हमारे आला तबके में दर्जे दिखी नहीं रहा था और फहम दानिश की भी कमी थी। इसलिए आज सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि हम अपना बजट भी IMF से बनवा रहे हैं। बजट खसारा रुकने का नाम नहीं ले रहा। आधे से ज़्यादा बजट पुराने कर्जों की इकसार और सूद की अदायगी में जा रही है और इसके साथ अंदरूनी बैरूनी कर्जे जो कभी ना होने के बराबर थे वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं और हर साल इसमें भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई जब पाकिस्तान सिटीजन एक्ट नाफिज करके भारत से आने वाले महाजरीन का सिलसिला रोक दिया गया। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 40 लाख और आज ये आबादी 2017 के मुकाबले में की मरदमशुमारी के मुताबिक 22 करोड़ बताई जाती है। 1951 में शरह खुआंदगी 16% थी। यूँ कुल आबादी में अनपढ़ अफराद की तादाद तकरीबन 5 लाख और मजबूरी तौर पर तादाद 9 करोड़ है। आज़ादी के वक्त मंशियात के आदि अफराद की तादाद ना होने के बराबर थी। आज मुल्क में मंशियात के आदि अफराद की तादाद 95 लाख से तजावुज़ कर चुकी है और इस तादाद में 90% नौजवान हैं। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुदरत की मेहरबानियों और मिसाइल के साथ हमारा मुल्क मजमूई तौर पर दुनिया के टॉप 20 ममालिक में शामिल है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में तकरीबन जितने भी
नजरिए के तहत एक कौम बल्कि एक मजबूत कौम थी, जिसने एक मुल्क को सिर्फ एक साल में मुआशी, इक्तिसादी, दिफाई और अस्करी तौर पर मजबूत बना दिया था। लेकिन आज मुल्क तो है, मगर हम बतौर कौम बिखरने लगे हैं। और फिर 1990 की सर्द जंग के बाद जब दुनिया भर के ममालिक दुनिया के नए मंजरनामे के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, हम बदकिस्मती से बदतरीन करप्शन, तासुब, धक्कावारी का शिकार थे। लेकिन ये एक अच्छी सूरत ये है कि हम एक बार फिर पाकिस्तानी कौम में जज्बा हुब्बुल वतन बड़ी कुव्वत से बेदार हुआ है और ये जज्बा नौजवानों में बड़ी शिद्दत से उभरा है। ये सूरत हाल बकौल फैज़ अहमद फैज़ यूं है, रोशन कहीं बाहर के इनका हुए तो हैं, गुलशन में चार चंद गिरबान हुए तो हैं, इनमें लहू जला है हमारा है कि जान दिल महफिल में कुछ शराब फिरोजा हुए तो हैं। यूं पाकिस्तान की तारीख का जायजा लें तो आज हम क़याम पाकिस्तान और आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो इस 75 साल तारीख को हम 3 नस्लों या 3 पुश्तों या 3 अदवार में तकसीम करते हैं। पहले वो नस्ल जो अंग्रेजी राज के हिंदुस्तान में पैदा हुई, लेकिन अपने इस्लाम से जदोजहद आज़ादी की तहरीक और जज्बा लेकर आगे बढ़ी और पाकिस्तान को हासिल करके दिखाया। इनमें सबसे ज़्यादा नुमायाँ और दरख्शां नाम कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब का है और शहीद मिलत लियाकत अली खान के हैं। फिर इन नामों के बाद फहरिस्त 1990 से तक आती है, जिनमें से चंद लीडर मुख्तलिफ अंदाज से हुक्मरान हुए। जुल्फ़िकार अली शहीद से लेकर आज तक सारे हुक्मरान आए और चले गए, मगर इनमें से बहुत सी गलतियाँ बल्कि बात से बहुत फाश गलतियाँ हुई। कुछ इस कदर करप्शन के इल्ज़ाम भी आए, मगर 1990 के बाद से जो क़यादत से बरसर इक़्तिदार आई वो तकरीबन तमाम नाअहल साबित हुई। सिर्फ 32 बरसों में पाकिस्तान बहसियत मुल्क और बहसियत पाकिस्तानी कौम हमें 75 साल तारीख के दूसरे या दरमियाने दौर की लीडरशिप ने बल्कि हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नाअहल अफराद की अक्सरियत में शदीद नुकसान पहुँचाया। ये दूसरी नस्ल जो क़याम पाकिस्तान के बाद 50 की दहाई तक पैदा हुई और अब अगर जो लोग इनमें जिंदा हैं, इनकी उम्र 60 से 70 साल क्रॉस कर चुकी है, इनकी अक्सरियत ने ये जुर्म किया है कि हमारी तहजीबी इखलाकी इक़्तिदार को पामाल कर दिया। लेकिन इतने बुरे हालात के बावजूद अब हम नौजवान नस्ल नई जोश और जज्बे से आगे आए हैं। मैं नौजवानों की इजाज़त से यौम आज़ादी पर मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करती हूँ। मेरा जोश और अगला मुझे इस अजीम कौम के लिए अपनी खिदमत वक्त करने की तरफ राग़िब करता है। हम नौजवानों के जो एहसास और जज्बात हैं, मैं आपको बताती हूँ, मुझे यूँ महसूस होता है जैसे हमारी आज़ादी की पहली लीडरशिप की पाकिज़ा रुखें हम में हमारे जिस्म में महसूस होकर रह गई हैं। और वाकई ये दुरुस्त नहीं, और वाकई ये दुरुस्त है नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने कुश्ते वीरा से, ज़रा नाम हो ये मट्टी बड़ी जखेज है साथ। आज इस मुनासबत से आइकॉन अवार्ड को मुनक़िद करने का बहुत खुश हूँ और मैं फिर आप सबका एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह पाक हमारी मेहनत को कबूल फरमाए और इस मुल्क को दुनिया को मजबूत बनाने में काम आएगी। एक छोटी सी दुआ अपने मुल्क के लिए पेश करना चाहूँगी। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ फिजा को गुजरने की भी इजाज़ ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रुईदगी महाल ना हो। खुदा करे ना कभी कम सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तशवीश व माहुसाल ना हो और हर एक खुद हो तहज़ीब व फन का औजे कमाल। कोई मुल्हूल ना हो, कोई फस्ताहाल ना हो। खुदा करे कि मेरी एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आमीन। May Allah Almighty keep our country safe because if the country is safe, then we are safe. Pakistan Zindabad. Thank you so very much, extremely talented Ms. Uzma, and she's very dedicated and very hard work. Since so many days, mashallah, we are just planning for this event, and
मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मैं बहुत 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 खुश हूँ आपके आने से। थैंक यू सर। Before moving towards the speech, I really want to say thank you to all the sponsors for sponsoring this event. And उससे पहले, if I don't say thank you to the sponsors who have sponsored me, then they're gonna kill me and screw me. So I really want to say thank you to J.BB Collection for sponsoring me this lovely outfit, and thank you KC Beauty Studio for the lovely makeup, and thank you Culture Online, and thank you once again to J.BB Collection. Thank you so very much. Moving towards the speeches, and after this speech we will be starting our award function and the award ceremony. So I would like to invite Mr. Shams Jafri, Ex-Secretary Culture Department, on the stage to please say few words. Please give a huge round of applause for Mr. Shams Jafri, Ex-Secretary Culture Department. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं मशकूर हूँ आप सब लोगों का कि आप अवार्ड की दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ उज़वा साबिर साहबा का और रहमतुल्लाह अहमद साहबा का। तो उन लोगों ने हमें ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ आज करते हैं। ये 7वां अवार्ड है। मैं पहले अवार्ड से किसी ने किसी तरह इस अवार्ड से मुंसलिक रहा हूँ। 2016 में पहला अवार्ड हुआ, फिर 17 में हुआ, 18 में हुआ, फिर 19 में हुआ। 20 और 21 में इस किस्म की तकलीफ इसलिए नहीं हो सकी कि जैसे सारी दुनिया के कारोबार कोविड की वजह से मुतासर हुए, तो ये अवार्ड भी उससे मुतासर हुआ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कोविड की जो वबा है वो अगर ख़त्म नहीं हुई है तो कम से कम बहुत ही कम लेवल पे आ गई है, और हम ये अवार्ड करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2016 से लेकर 2019 तक जो तकरीबात हुई हैं उसमें उन 5-4 तकरीबात में 130 से ज़्यादा लेजेंड्स को जो मुख्तलिफ फील्ड्स में आउट से जिनकी परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, लिटरेचर हो, फिल्म, टीवी, थिएटर, पोइट्री, उनमें से 130 से ज़्यादा लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज भी वो 20-25-30 अवार्ड दिए गए हैं। यकीनन ये मौका ऐसा है जिसमें हमें अपने वो लोग जो मुख्तलिफ फील्ड्स में कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं उनकी रिकग्निशन के लिए ये एक छोटा सा एक तोहफा भी है, और इस बात की निशानी भी है कि ये हज़रात अपने अपने फील्ड में एक आला मकाम रखते हैं। मैं आईकॉन अवार्ड की तरफ से जो आज लोग रिसिपेंट्स होंगे उनको मुबारकबाद देता हूँ, और इस बात की का इजहार करता हूँ कि इन हज़रात ख़वातीन हज़रात जिनको आज अवार्ड मिलते हैं उनको ये सिर्फ ये नहीं है कि आज की तकरीब है इसमें ये कोई तय किया गया है, इसके लिए तकरीबन 1 साल की पूरी मेहनत होती है पीछे। आज इंशाल्लाह तकरीब जब ख़त्म होगी तो अगले साल की तकरीब के लिए तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। वो तैयारियाँ इस तरह होती हैं कि मुख्तलिफ फील्ड्स पे जो लोग काम करते हैं उनके बारे में पता किया जाता है, उन्होंने जो 1 साल में काम किया है उसको देखा जाता है, फिर उसमें से सिलेक्शन की जाती है मेरिट की बुनियाद। और ये पिछले 5-6 महीने से उज़मा साबिर साहबा और हमारे रहमतुल्लाह मेमन साहब और उनकी जो टीम है वो इस काम में लगी रही, और आज वो दिन आया है जब हम इन ख़वातीन हज़रात को अवार्ड दे सकें। हमें उम्मीद करनी चाहिए
कि ये लोग जिनको आज अवार्ड मिलेंगे या और ऐसे लोग जो मुख्तलिफ फील्ड पे काम करते हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। हमें आइंदे के मौक़ों पर भी उनको उनकी खिदमत को सराहने का मौका फराहम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so very much, Mr. Shams Jafrani. And proceeding further, we have one more speech with us, and I would like to invite Mr. Asif Siddiqui on a stage to please say few words. Mr. Asif Siddiqui. A well-known social activist, please say few words about this event. Thank you so very much. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पुरवकार तकरीर जो उस्मा साबिर साहिबा ने और रहमतुल्लाह मेमन साहब ने सजाई है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इन्हें। और यकीनन आज यहाँ पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वो अफराद मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा हर सतह पे मनवाया है। और यकीनन जो लोग मुआशरे में अपने काम से अपने किरदार से जो नकूश छोड़ जाते हैं उनको पजीराई मिलनी चाहिए। यहाँ पर टीवी, फिल्म, स्पोर्ट्स, कलाकार, पोइट, शायर, तमाम शोबा हाथ ज़िंदगी से लोग यहाँ मौजूद हैं। और यकीनन जिन लोगों को अब यहाँ अवार्ड मिलेगा वो मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं और मैं एडवांस में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ इस किता के साथ आपकी नज़र करता हूँ कि ज़माना यूँ तो हर एक पे नज़र नहीं करता, ज़माना यूँ तो हर एक पे नज़र नहीं करता और कलम की बेअदबी दरगुजर नहीं करता। कलम में हिल्म भी है, नाज भी है, वकार भी है, अज़ान सुबह भी है, शाम बादा खार भी है। सुनो कलम की मुहिम्मात जानने वालों, दिल हयात की ज़रबात जानने वालों, अदब के जुमला मुकामात जानने वालों, मिजाजो अर्जो समावात जानने वालों, जहाँ भी मतला हक पे सहाब उठेगा फिर किसी कलम से कोई आफ्ताब उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so very much, sir. And आपको देख के तो हमने आवाज़ किया। पहले तो सबसे पहले मैं चूँकि आपके ज़रिए यहाँ तक पहुँचा हूँ, पहले आपका शुक्रिया, उस्मा साहिबा का शुक्रिया, मेमन साहब का शुक्रिया, आइकन अवार्ड का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ बुलाएं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। सर पूछना ही है, मीडिया बहुत बड़ा हो गया। नए लोग कहते हैं हमें मीडिया में इंटर होना है। बुढ़ी से पूछ ले, बुढ़ी बताएगी कि अब कब आता है स्पॉन्टेनियस रऊफ लाला, मैंने इनके साथ पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया। ये स्टेज खालिद भाई जानते हैं कि स्टेज स्पॉन्टेनियस जो जुमला कह दिया उसका रिस्पॉन्स फ़ौरन आ जाता है। हम टीवी फिल्म करते हैं या रेडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अगर गलत होता है तो दोबारा रिकॉर्ड कर दिया जाता है। लाला कैसा लगता है? अगर आपकी इजाज़त हो तो इनसे सलाम करो। बिल्कुल करें। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आप सबको लाला का सलाम। और 7 आइकॉन अवार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ दावत दी इन्होंने और यहाँ मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। बाखुदा मैं 5-6 दिन से नहीं सोया, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने तो बिस्तर किराए पे नहीं दिया उतना। मेरा काम का मसला है। तो उस्मा से मैंने अभी यहाँ खड़े होकर सॉरी कर रहा हूँ उस्मा कि मेरी अभी रिकॉर्डिंग चल रही है और अभी भी मैं ऐसे ही हालत में हूँ तो मुझे पता नहीं मेरे सामने कौन खड़ा हुआ। कौन था? असलम शेख, एक तो शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ये वो शेख है इनके तेल के कुएं होते हैं, इनके कुई हैं कुई।
पेट की कोई लाला, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया उस मुल्क में जाके जहाँ पे आर्ट का जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान का कैनवस छोटा है लेकिन उनका आर्ट का कैनवस बहुत बड़ा है और आपने वहाँ पजीराई हासिल की और जिनके साथ यानी उमर शरीफ साहब की ज़िंदगी में एक उनका शागिर्द जो आप लोग कहते हैं कि हमने उनके साथ सीखा। मैंने पहले भी कहा और मैं टीवी पे बरमला ये बात कहता हूँ कि मैंने उमर शरीफ को कभी उस्ताद नहीं माना। मैंने हमेशा उनको मुर्शिद का दर्जा दिया। उनका ये प्यार था कि उन्होंने अपने साथ खड़ा कर दिया तो हम हिट हो गए, वरना 40-42 साल से काम कर रहे हैं, चल रहा है। लेकिन उमर भाई के साथ काम करने से हमें सारी दुनिया में पहचान मिली, वो था ड्रामा वगैरह के शो पर। सबसे पहले मैं अवार्ड के लिए जाता हूँ तिलावत के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि पहले वो कुछ हमारे ऑडियंस से कहें और उसके बाद हम उनका अवार्ड उनको देंगे। सो लेट्स इनवाइट मिस्टर शेख हारी साहब नोमानी साहब। ही इज द बेस्ट इमाम माशाल्लाह एंड बेस्ट स्कॉलर माशाल्लाह एंड कारी एंड हाफिज। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज से फ्यू वर्ड्स एंड आफ्टर दैट रिसीव योर अवार्ड। प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें हम कम है। हो गया। और जो मैंने मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात करके अपनी बात को समझूंगा। आज जितने भी लोग यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद हैं और जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा इसको जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम जितना मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और अदा करूँ। तो सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें तब भी वो कम है। अगर किसी चीज़ की हमें कोई हाजत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। उस सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम है या अल्लाह ताला कितना शुक्र है कि तूने मुझे दूसरों से तो अच्छा रखा, तो ये भी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया तो आपकी सेहत अल्लाह ताला अच्छी कर देंगे। माली कोई प्रॉब्लम है या अल्लाह ताला कितना शुक्र है कि तूने मुझे हर नेमत से नवाजा, तो थोड़ी सी परेशानी आ गई तो अल्लाह ताला वो परेशानी भी दूर कर देंगे। एक छोटा सा तारुफ जो शायद रह गया, एक तिलावत कुरान के हवाले से। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान का तारुफ, ये पाकिस्तान, ये चांद सितारा हमें मस्जिद नबवी तक ले गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मदीना मुनव्वरा में मैं मुक़ीम हूँ और मस्जिद नबवी शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला ये सब पाकिस्तान की वजह से ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी एक बहुत बड़ी पहचान जो पाकिस्तान की वजह से दुनिया भर में मिली वो ये, मैं खुद अपनी ज़बान से तो खैर नहीं कह सकता, इंटरनेट जो सर्च इंजन है उसकी एक रिपोर्ट है कि he is only one in the world who can recite more than 99 different vocals, tunes, manners। ये मुख्तलिफ आवाज़ों में पढ़ना ये भी अल्लाह की तरफ से एक देन और अता है। उसका मैं थोड़ा सा इशारा आपके सामने करूँगा। मोइन अख्तर साहब की बात आपने की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मोइन भाई से एक दफ़ा हमारी मुलाकात की 2001 की बात है। याद है क्योंकि मेरी अज़ान भी आया करती थी तो मोइन भाई को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई आप आवाज़ें, मतलब आपका जो टैलेंट है वो क्या है। मैंने कहा मोइन भाई मैं मौलवियों का मोइन अख्तर हूँ, आप जिस तरीके से दूसरों की आवाज़ें निकाल लेते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि देखें अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए चुना है कि हर लहजे में, हर एक की आवाज़ में आप कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं। मैं मुख्तसर इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर कोशिश करूँगा कि खाने काबा और मस्जिद नबवी के जो अइम्मा हज़रात हैं उनके अंदाज में तिलावत कलाम पाक आपके सामने पेश करूँ। सबसे पहले तो मैं अपने अंदाज में तिलावत पेश कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हरमैन शरीफैन के अइम्मा हज़रात के अंदाज में तिलावत पेश करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين खाना काबा के इमाम हैं शेख माहिर मुआइद हफ़िज़हुल्लाह उनके अंदाज में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا मदीना मुनव्वरा के इमाम हैं शेख हुसैन आल शेख हफ़िज़हुल्लाह जो हमारी जो छोटे बच्चे हैं ख़वातीन हैं बहनें हैं बेटियां हैं जो कुरान पाक की तिलावत अच्छे अंदाज में करना चाहती हैं ये जो अंदाज़ है उनके लिए बहुत मौजू है शेख हुसैन आल शेख हफ़िज़हुल्लाह के अंदाज में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا इसी तरह हमारे नौजवानों में बहुत ही मकबूल और मशहूर कारी हैं शेख मशार राशिद अल-अब्बासी कोई के बहुत मारूफ कारी हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
आखिर में अपने इस प्रोग्राम को समेटता हूँ। उफ़ुक़ हरम की 2 चमकते सितारे, मेरी मुराद शेख सरूर बिन इब्राहिम अश्शरीन हफ़िज़हुल्लाह और खाना काबा के जो इमाम हैं, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, शेख अब्दुर्रहमान अश्शरीन हफ़िज़हुल्लाह के अंदाज में। अच्छा, बच्चों के लिए थोड़ा सा रह गया। बच्चों के लिए एक आयत पढ़ो क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तो एक आयत जो एक अंदाज है छोटे बच्चों के लिए। देखें, आवाज़ें मुख्तलिफ हैं और बच्चों की जो टीचर्स या जो बड़े खुर्रा हजरात हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी जो है ना मैच नहीं करती बच्चों की वॉइस और जो वोकल कॉर्ड का सिस्टम है। तो उनके लिए एक अंदाज है, इसको मक्की हज़ीरी भी कहा जाता है, और जो मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ने के वो मैं इंशाअल्लाह एक अंदाज पेश करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और आखिर में शेख सरूर बिन इब्राहिम अश्शरीन साहब और शेख अब्दुर्रहमान अश्शरीन साहब हफ़िज़हुल्लाह के अंदाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गhayril मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोविड की वजह से हम लोग हरमैन शरीफैन से बहुत दूर हो गए हैं, ट्रैवलिंग बंद हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खुल गया है, मामला सारे खुल गए हैं। वो जो हरम के जो मनाजिर है ना, जो इमाम काबा और जो मुअज्जिन हैं, उनकी जो अदा है, उसका एक मंजर आपके सामने पेश करूँगा और इसी पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। इमाम है शेख अब्दुर्रहमान अश्शरीन, जो कि खाना काबा के मुतवल्ली भी हैं और इमाम भी हैं, और मुअज्जिन हैं शेख अली अहमद मुल्ला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गhayril मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़in इज़ा वक़ब व मिन शर्रि النفاثات في العقد व मिन शर्रि حاسد إذا حسد। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
वाकई इंतहाई मशहूर माशाअल्लाह और बिलखुसूस रहमतुल्लाह अलैहि साहब और उस्मा साहिबा और हरीशदार साहब जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ में माशाअल्लाह यहाँ से खुसूसी तौर पर जब मैं वहाँ मौजूद था तो उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। आप तमाम हज़रात का मैं दिल की गहराई से बहुत मशहूर हूँ। सलाम अलैकुम। This award is for Best Imam, Scholar, Qari and Hafiz. Mr. Usman, please join, and Mr. Abdullah, please join. Sir, stay. Sir, please stage for Rita, and for the next award, which is Well, thank you so very much. I'm really honored and privileged for giving me this award. और असलम शेख जो बोल रहे हैं बार बार, let me correct you for God's sake. My name is not Shekhi. My name is Shihaki. 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 Okay? Shihaki. 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 ये छोड़े कि ये actually my forefathers were from Iran and Turkey and blah blah. But this name comes from there. Mashallah. God's like इस मुल्क में 40 साल हो गए और अभी तक ये नाम शेखी बोलते हैं। तो आज के बाद क्या बोलूँगा? Shihaki. There you are. Yes. Correct pronunciation. Yeah, Bilkul ji, and So Khalid Ahmed spoke very, very well, and according to him, we must broaden our spectrum. सिर्फ ये कि आर्टिस्ट होना कि बहुत ऊंचा हो गया, फलाना हो गया. I also had very, very variations in my singing because I groomed myself as a playback singer actually. बाद में टेलीविजन में वो पॉप सिंगर का नाम लगा दिया. मगर मैं आपको बता दूं कि मैंने गाने का कोई भी सेगमेंट छोड़ा नहीं. Take it semi-classical, धारा, ठुमरी, blah blah. जैसा प्लेबैक सिंगर होता है उसमें अच्छाई होती है कि उसको हर किस्म का गाना गाना होता है. This is what I really enjoy because it's a very broader spectrum other than just singing a few lines जैसा कि भी आपके सामने होता है. और असलम शेख जो है he resembles me quite a lot. Yes, yeah, that's true. But my time is running short and set to go. तो मैं आप सबको one मेरे बचपन के कितने अच्छे थे. मेरे बचपन के कितने अच्छे थे. आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गई. आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गई. मेरे पिछड़ों से मुझको मिला दे कोई. मेरे पिछड़ों से मुझको मिला दे कोई. मेरा बचपन किसी को आवे कोई. मेरे बचपन के कितने अच्छे मेरे बचपन के. thank you so very much, sir. And शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच सर. आपको thank you. And now we have to. आप यही जो है ना दिस Please come on the stage to receive your award. Please give a huge round of applause for Mr. Wasi, the senior television actor. This award is welcome, sir, on the stage. बस बैठ जाओ, टेक लगा के. इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. M. Barsi, the Pakistani television senior actor, most actor, M. Barsi. Thank you so very much,
sir. जानते ही नहीं कुछ काम करके इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि हमें भी डर लगता है कि इनके हवाले से क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। हम दोस्त हैं लाला खालिद अहमद शेख, इनको देख के तो हमने आर्ट को करना सीखा कि आर्ट होता क्या है, आर्ट है क्या, शो बिजनेस है क्या, पाकिस्तान टेलीविज़न है क्या। स्क्रीन पे देखते थे और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि उसने हमें इस काबिल किया कि उसकी ब्लेसिंग ऐसे लोगों पे थी और इनके साथ हमें लाके खड़ा किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी पहचान इनसे करवाता है। इनकी पाकिस्तान टेलीविज़न पहचान नहीं और पाकिस्तान टेलीविज़न की पहचान है कि एम वारसी ने अपने काम से पाकिस्तान टेलीविज़न को बामे उरूज पर पहुँचाया। एम वारसी एक वो नाम है जिसने अपने फ़न के ज़रिए आपको घर बैठे इंटरटेन पहुँचाया। एम वारसी पाकिस्तान की वो शख्सियत है कि इनके सामने कितनी हुकूमतें आई, बड़े बड़े वज़ीर आज़म चले गए और आज ये मीडिया का वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान आज हमारे दरमियान मौजूद है। ये शो बिजनेस की वो शख्सियत है और ये हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी के साथ रहेंगे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ फ्यू कमेंट्स। सबसे पहले नाज़रीन और हाज़रीन मुंतज़मीन अस्सलाम। अभी मैं थोड़ी देर से बातें सुन रहा था, बड़े बड़े माशाअल्लाह बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये असम शेख है, ये अभी आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे थे कि आप लोग कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाए। 30-35 सालों में बकौदी करते हुए मुझसे भी लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि आप से तुमने जिंदगी बनाई, तो 50 साल से हम तुम्हें देख रहे हैं काम करते हुए, अभी तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। तो मैंने उनको कहा कि मेरी जान, अवार्ड ये बड़े नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि ये बड़ा बहुत बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान का, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने कहा ये उसको मिलता है कि आपने सुना होगा कि ऑस्कर अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड वर्ल्ड, उसके टक्कर का ये अवार्ड है, इसका नाम है खासकर अवार्ड। ये खास लोगों को दिया जाता है जो समोसा टिश्यू से पकड़ के खाते हैं। अब क्योंकि आज भी मुझे अवार्ड मिला तो मेरा जो जहन है वो चेंज हो गया। अब मुझे लगा कि नहीं, हाथ से समोसा खाने वाले को भी अवार्ड मिलता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें। बहुत सारी तालियां हैं वारसी साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद प्लीज। Give a huge round of applause for Mr. Shoaib Mohammed. Thank you so very much, sir. Thank you. Love and peace. So just relax and calm down and let's enjoy the show. The next category is for the radio. I would like to invite Ms. Shagufta Yami, Best RJ Morning Show. This award goes to Shagufta Yami for the Best RJ Morning Show. Please relax. थोड़ा सा relax हो जाए। शगुफ्ता रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, शगुफ्ता आरजे हैं। शगुफ्ता बहुत अच्छा बोलती हैं और इन्होंने रेडियो की दुनिया में अपने आप को एज ए आइकन के तौर पर यहाँ तक लेकर आएंगे। कंग्रेचुलेशन शगुफ्ता, थैंक यू वेरी मच। Proceeding further in business, which is one of my favorite subjects as well, because I myself is doing the online business. So I would like to invite Mr. S.N. Mehnati, Managing Director, CEO, Arif Habib Communities, and we would like to invite him on the stage to receive his award. Please give a huge round of applause for Mr. S.N. Mehnati, Managing Director, CEO, the award to Mr. S.N. Please give a huge round of applause. I need your clapping. तालियां होनी चाहिए. Thank you.
शुक्र। और उसके बाद मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा मेरी बहन बेटी यहाँ पे कंवल ना होती तो रहमतुल्लाह मेमन साहब नहीं होते, रहमतुल्लाह मेमन साहब नहीं होते तो उस्मानी होती। तो इन्होंने मुझे यहाँ तक खेला। और बात यह है ये मेरे लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कम से कम ऐसे इदारे मौजूद हैं जो फनकारों को आइकॉन को समझते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी को लूट नहीं कराते थे, पहले ये करते पहले आओ पहले पाओ। उड़ीसा मोहसिन साहब, आपने लाजमी इतना काम किया है माशाल्लाह। आपके बारे में वक्त की कमी की वजह से मैं बहुत कुछ पेश नहीं कर सका यहाँ पर। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो वेरी मच। मैं रहमतुल्लाह मेमन साहब का बहुत इस वक्त आपको मैं इंशाफ कर रहा हूँ, मेरे में इस वक्त जितने केसेस चल रहे हैं 75% केसेस की इन्वेस्टिगेशन मंसूर मुझे मिली थी। तो इतने बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा तमाम दोस्तों का। सच्ची बात तो ये मैं 7 सालों से इंतज़ार कर रहा था। मैं समझ रहा था कि मुझे पहले साल में मिलना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अवार्ड के जो है वो डायरेक्टिव किए जा रहे हैं। चलो सही, 1 साल से ही मुझे मिल गया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेमन साहब का जिन्होंने मेरे अच्छे कलमात इस्तेमाल किए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की मीडिया ठीक हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यकीन माने बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस चला है मेगा करप्शन का, फेक अकाउंट केस। सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई थी फेक अकाउंट केस। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं पढ़े लिखे सबको पता होगा, बड़े बड़े नाम उस पर जेलों में चले गए। तो कुछ तो आजकल मसरूफ़ है तहरीक अदम एतमाद में, तो उनकी रिपोर्टिंग मैंने की थी। पूरे पाकिस्तान की मीडिया के जितने भी दोस्त हैं 90% ने एक तरफ से किया। मैं अकेले मेरे जो है 90% मैं था, 10% वो थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है मैंने अपने मुल्क के लिए चोरों को, भगोड़ों को, डाकुओं को वहाँ तक पहुँचाया हुआ है। बहुत सारे जेलों में चले गए, अरबों रुपये की रिकवरी हुई है और मैं आइंदा करता रहूँगा। बड़ी मेहरबानी हम लोगों ने सबसे सर आप डिज़र्व करते हैं और आप डिज़र्व करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें आपके ऊपर फ़ख्र है। प्लीज़ सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। एंड आगे बढ़ते हैं। Now I would like to invite on the stage, sir आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज पे रहिए। अच्छा, यस जब हम टेलीविज़न पे रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो टेलीविज़न की कैंटीन हुआ करती थी और उसमें हमें रोटी दाल चावल मिल जाया करता था। लेकिन हमें जब अच्छा खाना होता था तो हम न्यूटाउन जाया करते थे और न्यूटाउन के अंदर एक हनीफिया रेस्टोरेंट था और हनीफिया रेस्टोरेंट की देखा देखी आज कराची के अंदर बेशुमार आइकन रेस्टोरेंट बन गए। मैं इसका क्या नाम लूँ कि बेशुमार कराची के अंदर बड़े बड़े बन गए। लेकिन आज भी वो नाम लूँगा कि साबरी निहारी, बुद्धू खां कबाब और हनीफिया बर्गर, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इनकी फेक ब्रांचें आपको लंदन में भी मिलेंगी, अमेरिका में भी मिलेंगी, जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगी। तो हम आइकन के लिए कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट के हवाले से बिल्कुल जी। Now we would like to invite for this award Mr. Sayyid Hanifia, the chairman of Food Committee, All Karachi Tajir Alliance. Please give a huge round of applause for Mr. Sayyid Hanifia. ये वो हनीफिया के मैं बता नहीं सकता। सर लव यू सर। मैं हनीफिया बर्गर, हनीफिया के कोई नाम बता दे हनीफिया, ये आज सो कॉल्ड बड़े बड़े पैसे लगा के जिन्होंने रेस्टोरेंट बनाए ना, वो हनीफिया रेस्टोरेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में बुद्धू खां का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर ये वो शख्सियात हैं कि यही हमारे लिए मैकडोनल्ड हैं और यही हमारे लिए KFC है। ये पाकिस्तान की वो शख्सियात हैं। हनीफ साहब, हमने जब टेलीविज़न पे काम करते थे तो उस वक्त आपके रेस्टोरेंट से हम फूड मंगाया करते थे, क्योंकि टेलीविज़न के रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं मिलता था।
आज आप आइकन बन चुके हैं पाकिस्तान के, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और ये जितने भी अवार्ड हैं ये अवार्ड मेरे नहीं, ये तमाम अवार्ड मैं अलहाज मोहम्मद हनीफ शिमलवी जो मेरे वालिद मोहतरम हैं उनके नाम से मंसूब करता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत और काविशों से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अवार्ड जो मिलता है ना ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए पब्लिक के लिए कुछ करना पड़ता है, ख़ास तौर से क्वालिटी क्वांटिटी। आजकल आपको बेहतरीन कैंपेन्स मिलेंगे, बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन वो ऊँचा नाम और फीका पकवान। और हम लोग दिनों में जो है अपने कारखानों में होते हैं और रात को आपके खत्म करने के लिए होते हैं। इसी वजह से आज ये मुझे अल्लाह ताला की फल से मुझे अवार्ड मिला है, और मैं मेरे दोस्त का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सॉरी करता हूँ ऑडियंस से भी कि अगर कोई बात पूछ लेती हो तो मैं माफ़ करता हूँ। बड़ा आदमी होता है वो सॉरी करता है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं और हमको सॉरी कर दी। वाह यार क्या आदमी है, खुदा की कसम ये आदमी क्या शख्स है, इसके लिए तालियां बजाएं यार। ये आदमी क्या है, ये आदमी वाकई खुदा की कसम, जैसे इसके बर्गर का टेस्ट नहीं बदला, ये भी नहीं बदला आज तक, और ये बदलेगा भी नहीं। आपको हम KFC और मैकडॉनल्ड से ऊपर समझते हैं मेरे भाई, आप उससे बड़े। लव यू, थैंक यू। Thank you so very much, sir. सलीम शरीफ, दोबारा बार नहीं करूँगा, तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत सारी तालियां सलीम शरीफ के लिए। सलीम शरीफ वायलिनिस्ट। मैं आपके बारे में इतना कुछ यहाँ बयान कर चुका और आप यहाँ मौजूद नहीं है। बहुत सारी तालियां सलीम शरीफ के लिए। चलो ठीक है जी भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सदर भाई बहुत प्यारे भी बैठे हुए हैं क्रिकेट के हवाले से और उनके साहबजादे, तो बहुत सारे मेरे लिए कि मुझे इन्होंने इस काबिल समझा कि मुझे अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच रहमान भाई, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सलीम शरीफ साहब। अब पाकिस्तान के अंदर लेजेंडरी रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, इंटरनेशनल फूड चेन भी है यहाँ पर पाकिस्तान में, और उसने जो है बहुत सारे आइटम हमारे लॉन्च किए। लेकिन हमारी जो लोकल्स यहाँ के थे, जो 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद जो लोग अपने साथ जायका लेकर आए थे, उस जायके के अंदर भी एक नाम है लेजेंडरी फूड जो है रेस्टोरेंट, उसमें एक नाम रहा, वो है मंजू खान, और आज यहाँ मौजूद हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। मैं अभी लास्ट जब अमेरिका गया था, सामने वहाँ बंदू खां भी खोला उनका, मैंने कहा भाई आप तो कौन? कह रहे हैं बंदू खां टिक्का। मैंने कहा पूरी फैमिली को जानता हूँ, मैं उनके घर का एक फर्द हूँ, पहले आप ये बता दें। कहने जी हमने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि नाम दे दीजिए ताकि हमारा भी कारोबार चल जाए। तो शायद उन्होंने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं कि लोगों को अपना नाम दे दीजिए, चाहे बंदू खां के नाम से आप टिक्के बेचने अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ अपने भाई के लिए। मैं शाहिद बंदू खां साहब से दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज एंड रिसीव द योर अवार्ड। बंदू खां रेस्टोरेंट, legendary restaurant chain in Pakistan, Mr. Shahid Bundhu Khan. ये देख अब मुझे तो नहीं हिलाओ, पागल के एक तरफ से रुक जाओ। वाइट ले वाइट, बस 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 क्या मानेगा, कभी ना कभी तो बाद में पता चलेगा, प्रोग्राम खत्म हो गया, क्या मान गया। भजन पीछे आ जाए, सर पीछे बैठ जाए। मैं यहीं रखा हूँ भाई, तुम उधर कवर करो। अबे अवार्ड तो सीधा कर लो। साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों को दोबारा जिंदा किया जिनको लोग भूल गए, तो उन लोगों का बात में लाने से जो आइकॉन बनाया गया, जो आइकॉन है उन्हीं को आइकॉनों के याद दिलाना डायरेक्ट बनाया। तो बंदू खान 1948 में स्टार्ट किया, जब रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था,
तो हम वो लोग जो फुटपाथ से चल के यहाँ तक पहुँचे और अलहमदिल्ला इंटरनेशनल एग्जीबिशन में करता हूँ और अलहमदिल्ला सुमर मैकडोनल्ड KFC के साथ मेरा कंपटीशन होता है और अलहमदिल्ला मेरे पास इंटरनेशनल 22 अवार्ड है। ये अल्लाह का करम है और ये पाकिस्तान में ये है और हम कहीं पर भी जाते हैं फखर होता है कि हम पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाते हैं। कहीं पर भी जाएंगे बंदूक खान का नाम भी लोगों को जहन में आएगा पाकिस्तान। आप जैसे लोगों की दुआएं चाहिए और इंशाअल्लाह मैंने क्या मैं इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ब्रांचेस डालती है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मैकडोनल्ड KFC पाकिस्तान में आते तो बंदूक खान सारे दुनिया में क्यों नहीं जाता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। Thank you so very much, sir. Thank you. And आगे बढ़ते हैं। Now I would like to invite to the stage Mr. Shuja Sameer, TV actor. Mr. Shuja and he's very cooperative and just like a mentor to me. Thank you, Shuja. Thank you for always supporting your juniors as well. Give a huge round of applause for Mr. Shuja Sameer. And the next award. Now I would like to call Ms. Yasmin Mirza, one of the very talented hosts. Mr. Sami want to say a few words, then we will move towards Yasmin. Yes. अस्सलाम वालेकुम। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये है कि कैंपेन और टर्म डिप्रेशन डी गेम्स वो उसका जो स्लोगन है वो है मेक 1 to 5 people happy in a day, keep depression away। आपके घर में जो आपको सुबह उठ के नजर आए, आपने सिर्फ उनको हंसाना है, उसको हंसाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। And Yasmin, the gorgeous Yasmin Mirza is here with us. She is one of the finest TV hosts. This award goes to Ms. Yasmin Mirza. Please give a huge round of applause. Adila, next category you open up. Choose. Congratulations once again. And now I would like to call upon the stage from the. We have so many NGOs in Pakistan, and mashallah, some of them are working very good, and some of them are not satisfied. But this stage really deserve an award. Please give a huge round of applause for Tanveer Abbasi, social activist. He's getting this award from the category of NGO. Give a huge round of applause for Tanveer Abbasi. Excuse me, white by Adila, please. कैमरे के आगे हैं। क्या करूँ? पीछे आ जाओ। Thank you, ma'am. Mashallah, you're looking so pretty. Would you like to say something? Yeah, she wants to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे साथ बैठे हुए तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और उसके बाद रहमत मेमन साहब को और उस्मा साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ अवार्ड देने पे। और इसके बाद मेरा जो ये अवार्ड है मैं अपनी पूरी टीम को मंसूब करती हूँ, पूरी टीम को डेडिकेट करती हूँ। ये मेरे अकेले की अचीवमेंट नहीं है बल्कि ये कंसिस्ट करता है पूरे टीम वर्क होता है, तो हम यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा अपने बारे में आपको बताते चलूँ, सरकार फाउंडेशन ट्रस्ट और रेडियल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हम 2009 से काम कर रहे हैं और हमारे जो है वर्किंग डोमेन के पूरी टीम के साथ वेमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं। और इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं वो इफ्तार दस्तरखान करने जा रहे हैं और यहाँ पे सारे बैठे हुए लोगों से भी मेरी इल्तमास है, स्पेशली उन लोगों से जो होटल इंडस्ट्रीज से वाबस्ता हैं, हमारे दस्तरखान के लिए हमारे साथ आए और हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा भी जरूर डालिएगा अपने लिए और इस कौम के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
Thank you so very much, and let's move to the next award. I would like to request Mr. Malik M. Zafir Aban to please come on the award and receive his award. Charcoal Poetry Traders. Please give a huge round of applause for Mr. Malik M. Zafir Aban. Please Rasta DJ Circle. Congratulations, sir. इधर ही बढ़िया Congratulations to you, sir. One more award, and then I would move towards Mr. Aslam, and this award goes to Mr. Khalid. जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए, एनर्जी लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है। आपकी तालियां बजेंगी तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट होगी। थैंक यू, थैंक यू। We have Mr. Khalid Moin Award, and Mr. Rahmatullah is presenting. Congratulations, sir. को भरपूर मौका दिया कि आप इसको होस्ट कीजिए। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनके साथ अपनी ज़ाती पर्सनल चीज़ें शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि हम शीट से दबा देंगे हदीला को कि हदीला प्लीज़ आइए और अपनी शीट हासिल कीजिए प्लीज़। आपका पूरा नाम या प्लीज़ ये मैं थोड़ा सा नाम क्लियर करूँ। बताएं। हदीला हदील साहिर अल-बलूची। वाह, बहुत सारी तालियां। अर्शद, वहाँ से एक आइकॉन अवार्ड उठा लो। एक शीट यहाँ मौजूद है, एक शीट ले आओ। आप दोस्तों को रुकिए से कि लेफ्ट साइड पे आईटी एंजॉय करें। बेटा पीछे हो जा लास्ट शीट है यहाँ सबके लिए, और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो हाई टी की तरफ मूव करें। आइकन अवार्ड अब एक मैं करूँगा आइकन अवार्ड, उसमें सिर्फ 2 अवार्ड होंगे और इंशाल्लाह इसी होटल में करूँगा, आप लोगों को बुलाऊँगा। तो वो 2 अवार्ड सिर्फ मैं रहमतुल्लाह मेमन उस्मा साबिर को दूँगा और इंशाल्लाह आप लोगों को मदद करूँगा कि इन लोगों ने इस कराची शहर में इस तरह का अवार्ड का इजरा किया और पूरे साल जो ये मेहनत करते हैं। और अब इसके बाद Thank you to Nirmala, and we have one more award. Nirmala, want to say a few words? यहाँ पे मेरे भैया के साथ जो बहुत सपोर्ट किया, आज मैं यहाँ पे थैंक यू भैया जी ने सपोर्ट किया और थैंक यू मैं अपने ओरिजिनल सॉन्ग की बोला जाने की कोशिश करती हूँ। कैसा है तू ये तो बता जा, बैठे बैठे मैं तो कर गई कैसे मैं तुझको सजना रे सजना रे थैंक यू Congratulations, Nirmala. और प्रोग्राम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है। ये आप दोनों की मोहब्बत और चाहत मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल एंड। सर, ये मेरे लिए सब कुछ है, ये आपकी मोहब्बत चाहत और भरोसा। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू। अब सिर्फ अदिला एक मिनट लास्ट। सर आप प्लीज तशरीफ रखिएगा, आप भी तशरीफ रखिए। सर का एक अवार्ड है।
We have लास्ट के लिए अवार्ड हो गया है लास्ट Mr. Nisar. मैं लास्ट कर रहा हूँ हमेशा मैं प्रोग्राम का आगाज और एंड इस पे करता हूँ We have an award for Mr. Nisar. अच्छा निसार साहब कहाँ हैं Yes. निसार साहब Please, प्लीज तशरीफ लाइएगा come on the stage once again and ये receive your निसार साहब का award. अवार्ड है ये निसार साहब तो रहमतुल्लाह मेमन साहब देंगे Thank you so very much, Mr. Nisar, for your precious time. थैंक यू सर तशरीफ रखिए बेटा तशरीफ रखिए थैंक यू सर Sir, कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आइकन्स तो रिच है हमारे लिए, बहुत सारे आइकन्स हैं, लेकिन आइकन्स को ढूंढ कर उनको खाना देना, रेस्पेक्ट देना, वो एक ही बंदा को बंदे जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, वो है रहमतुल्लाह साहब। थैंक यू वेरी मच और रहमत साहब आप सामने बैठेंगे मेरे उस्मा आप भी आप सामने बैठेंगे प्लीज़ सामने बैठेंगे आप मेरे में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप भी बैठिए अदिला तशरीफ रखिए अदिला बैठे उस्मा तशरीफ रखिए प्लीज़ तशरीफ रखिए सामने तो बैठ जाएँ आप बैठ जाएँ सर प्रोग्राम वाइंड अप पे ले जा रहा हूँ सलीम शरीफ मेरे पास है सलीम शुरू कर दे मैं हमेशा बहुत सारी यादें छोड़ के जाता हूँ मैंने जब कहा था कि पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी थे जिन्होंने चकोरी के अंदर गाना गाया था और मैं हमेशा ये पूरी दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ अपने पॉप सिंगर को ट्रिब्यूट देता हूँ आज सलीम साथ हैं मेरे और आज पाकिस्तान के लेजेंडरी लाइव मेरे सामने बैठे हुए पाकिस्तान का सिंगर अल्लाह से सलामत रखे ज़िंदगी भर सर हम ट्रिब्यूट देते हैं अहमद रुश्दी को द लेजेंडरी सिंगर ठीक है कभी तो तुम में याद आएंगे ये बाहर आएंगे सब थैंक यू वेरी मच ताली होनी चाहिए इसके साथ साथ क्लैप करते रहिए ताकि हम इस प्रोग्राम को वहाँ करते रहेगा
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ RNN न्यूज़ के साथ। आज अब मौजूद है आइकन नेशन अवार्ड में। आइए इनके गेस्ट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, शरीफा यास्मीन। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगी आइकन अवार्ड के हवाले से? कुछ दो अच्छे लाइन। आइकन अवार्ड के हवाले से मैं ये कहूँगी, एक तो ये कोविड की वजह से दरअसल 2 साल नहीं हुआ, अदरवाइज़ ये हर साल करते हैं और एक बहुत अच्छा इवेंट है। प्लस इसमें जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि कम से कम वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है और अप्रिसिएशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई काम कर रहा है कुछ नहीं तो उसको अप्रिशिएट तो करें। थैंक यू फॉर द गुड रिमार्क्स। थैंक यू मिस, थैंक यू। ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह मिस, कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ RNN न्यूज़ के चेयरमैन साहब के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और कमेंट्स जानते हैं इस हवाले से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत अच्छी तकरीब है। आइकॉन नेशनल अवार्ड जो है, इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए जिसमें हमारे नौजवानों को हौसला होगा और जितनी ये कारकर्दगी दिखाते हैं उनमें जब इनको अवार्ड दिए जाएंगे तो इनकी कारकर्दगी और जो है ना नुमायाँ होंगी। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, और आपकी आमद के भी बहुत शुक्रिया सर। प्लीज़ सर, थैंक यू। ओके, अब हमारे साथ हैं मौजूद जी मिस, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं हूँ सिंगर वानिया राजपूत। अच्छा, माशाल्लाह, आज हमारे साथ है सिंगर वानिया। रानिया, क्या हवाला देंगी नेशनल आइकॉन अवार्ड से? 2 few lines। बस ये कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि ये अवार्ड सेरेमनी हो रही है इस तरह की, और होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम, और अप्रिशिएट्स करते हैं हम ऐसे प्रोग्राम को, हम जो आर्टिस्ट हैं। इस तरह अगर होगा तो फ़न भी बहुत बढ़ेगा, उसकी कदर में भी इजाफा होगा, और जब इस तरह ये इज़्ज़त देंगे लोगों को तो वो भी ज़ाहिर बात है इस फील्ड में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और बेस्ट विशेज़ है हमारी इनके साथ कि अल्लाह ताला इनको बहुत सारी तरक्कियाँ दें, कामयाबियाँ दें। आमीन। जज़ाकल्लाह, आमीन। क्या आपसे 2 लाइन गाने के भी सुने जा सकते हैं? अभी 1 लाइन दे दें। बिल्कुल। मैं जो है आपको अपने, क्योंकि मेरे अपने ज़ाती जो सॉन्ग हैं वो गूगल पे इंटरनेशनल चल रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड ने लिखे हैं, कंपोज़ किए हैं, वही मेरे जो हैं उस्ताद हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना ही पंजाबी एक सॉन्ग गुनगुना के सुना देती हूँ। चांद तकिया मैं चांद दी चकोर हो गई, कल होर सा मैं अज कुछ होर हो गई, वे चांद तकिया मैं चांद दी चकोर हो गई, कल होर सा मैं अज कुछ होर हो गई। वेरी गुड, थैंक यू वानिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ, और अब हम कमेंट्स ले रहे हैं आइकॉन ऑफ द नेशन अवार्ड के सरबराह। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, RNN टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, RNN के रियाज साहब का शुक्रिया अदा करना कि आप लोग यहाँ आए और हमारे इस शो को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। हमारा शो आपको पता है आइकन ऑफ द नेशन अवार्ड पिछले 7 साल से हो रहा है। बीच में कोरोना की वजह से 1-2 मिसिंग हुई है, लेकिन अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के अब ये शो हमारा शुरू हो चुका है और अब आपके साथ है। बिल्कुल सर, और ये हमारे लिए भी ऑनर, और RNN की पूरी टीम के लिए भी ऑनर की बात है कि हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, RNN न्यूज़ के साथ हैं अभी उज़मा साबिर, CEO ऑफ आइकन ऑफ द नेशन अवार्ड के हवाले से मैं इनसे कमेंट्स ज़रूर जानूंगी। जी उज़मा, बताइए, कुछ अच्छे से कमेंट्स हो जाए। अच्छे से कमेंट्स हो जाए। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, ये बाइस्ड नहीं है अवार्ड, ये हम रिकग्निशन अवार्ड देते हैं उन एंटरप्रेन्योर पाकिस्तानीज़ को जो वाकई डिज़र्व करते हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे शोबे जो है उसमें इंक्लूड हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम, क्योंकि आपको पता है आजकल अवार्ड तो आपको पता है हर वीक हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन वो इतने बाइस्ड हैं कि अपने जानने वाले को और PR को वालों को दे दी। लेकिन इनमें से जो मेरे पास सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं वो मुझे पर्सनली नहीं जानते, मैं उनको PR पे नहीं देती बल्कि उनकी परफॉर्मेंस पे अवार्ड देती हूँ। माशाल्लाह, इट मीन्स आप मोटिवेट कर रही हैं हमारी ऑल जेंडर ऑफ टीम और ऑल एज ऑफ नॉट मैटर इन द आइकॉन अवार्ड, और मुझे बहुत खुशी हो रही है बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, एंड सो नाइस ऑफ यू उज़मा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, आइकन अवार्ड में हमारे साथ हैं बाबर साहब जो कि कॉर्पोरेट जेम मैगज़ीन के ऑनर हैं। आइए इनसे जानते हैं अच्छे से कमेंट्स। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।
अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि माशाल्लाह कराची की जो लीडिंग कॉर्पोरेट सेलिब्रिटीज़ हैं अभी उनको उनकी अचीवमेंट पर अवार्ड दिए जाएंगे। आइकॉन का जब नाम आता है तो वो ख़ुद एक अवार्ड अपनी उसकी एक शनाख्त है और ये ट्रिब्यूट भी उन सेलिब्रिटीज़ को दिया जा रहा है जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने काम में अपनी शनाख्त बनवाई है। तो मैं बहरहाल मुबारकबाद देता हूँ रहमत साहब को। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा मिस इरम को, सॉरी नाम गलत हो गया, मैं सॉरी ये एडिट कर दीजिएगा, सॉरी। और मैं हाँ ये बेटा थोड़ा सा एडिट कर दीजिएगा। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मिस उज़मा को जिन्होंने जिनकी कोशिशें और जिनकी काविशों की वजह से ये इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं मिस हदील। आइए इनसे जानते हैं आइकन ऑफ द नेशन अवार्ड के हवाले से कुछ फ्यू लाइन्स। Assalamu alaikum. This is me, Hadil Sahal Al Biluchi. I'm a TV presenter and CEO Culture Online. This is the second time I'm hosting this event proudly, thanks to Uzma and thanks to Sir Rahmatullah. इस event की ख़ास बात ये है कि every year they try to acknowledge and appreciate all the achievers and all the successful people around the globe. If not around the globe, at least in Pakistan. मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें स्पोर्ट्स हो गया, मीडिया हो गया, फ़ैशन हो गया, रेडियो हो गया, पॉलिटिशियंस हो गए, बिज़नेस फ्रेटर्निटी हो गई, होस्ट हो गए, एंकर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, मेडिकल हो गया। देयर आर सो मेनी फील्ड्स जिनको दे अप्रिशिएट। सो दिस इवेंट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज दिस इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली एंड टुडे आई विल बी होस्टिंग दिस इवेंट। सो से मी गुड लक एंड इन एडवांस आई जस्ट वांट टू से कंग्रेचुलेशंस टू द CEO of the Icon of the Nation Award, Miss Uzma and Mr. Rahmatullah. जज़ाकल्लाह, वेरी नाइस लाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइकन अवार्ड में हमारे साथ हैं एक बहुत ही फेमस सिंगर। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में और कुछ फ्यू लाइन्स। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये आइकॉन अवार्ड और P&R की जानिब से मुझे ये अवार्ड दिया गया। मेरा फील्ड कथक, क्लासिकल कथक के हवाले से, तो कथक पर जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी खिदमत पर इनकी नवाजिश है कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया नाचीज़ को। डिजर्विंग है सर, डिजर्विंग है। बस ये इनकी मेहरबानी है और आप लोगों का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू फॉर वेरी नाइस कमेंट्स, थैंक यू सर। आइकन अवार्ड ऑफ द नेशन में हमारे साथ हैं इम्तियाज़ अली अब्बासी साहब। आइए इनके थोड़े से कमेंट्स जानते हैं। जी इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये कि ऐसे इवेंट होने चाहिए, बहुत खुशी हुई कि इस इवेंट होने से घर में बोरियत वगैरह ख़त्म हो जाती है और नॉलेज में इजाफा हो जाता है। चलिए आप इंजॉय करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। द नेशन में एक और कमेंट्स जानते हैं। जी सर। जी ये बहुत सारे अवार्ड्स हो रहे हैं और हम लोग देख रहे होते हैं किस तरीके के अवार्ड्स हो रहे होते हैं। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट अवार्ड हमारी कंट्री का बहुत बड़ा अवार्ड है और बहुत ही ऑनेस्टी के ऊपर यहाँ पे लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं और मैं इनका मशकूर और ममनून हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, डेफिनेटली यू डिजर्विंग सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आइकन ऑफ द नेशन में हमारे साथ है फैसल साहब। इनके बारे में इनसे थोड़ा जानते हैं और आइकन को लेके थोड़े कमेंट्स। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल ख़ान है। मैं फ्रूट नेशन और लश जूसेस यहाँ पे स्पॉन्सर किए हैं मैंने, और ये इफ्तिखार अहमद एंड कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं और हम यहाँ पर हमने स्पॉन्सर किया है और हम चाहते हैं कि ये सारे लोग उन जूसेस को ट्रायल करें और अपने फ़ीडबैक दें हमें हमारे फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे आके। और ये केमिकल फ्री जूसेस हैं जो कि पहली बार पाकिस्तान में एक कंपनी जो केमिकल फ्री जूसेस बना रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे अच्छी बात यह है कि सारा प्रोसेस हमारा है, हम पल्प भी खुद ही बनाते हैं और ये जूसेस भी हम टेट्रा पैक में लेके आए हैं। तो ये 6 महीने 7 महीने हुए हैं प्रोडक्ट लॉन्च हुए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े यूनिक फ्लेवर्स हैं हमारे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी मज़ा आएगा। और बस हम चाहते हैं कि ये लोग पिएँ और अपनी राय का इजहार करें, हमें बताएँ कैसी हमने ये प्रोडक्ट बनाई है। श्योर सर, आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ आपको पता चल जाएगा और बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। आइकन ऑफ द नेशन में है ब्यूटीफुल लेडीज़। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से कमेंट्स। जी मिस। जी आज की कमेंट्स तो बड़ी शानदार किस्म के हैं और होना भी चाहिए क्योंकि इट्स अमेजिंग वंडरफुल इवेंट्स hosted by Uzma Saber and रहमतुल्लाह मीमन साहब की एक कोशिश है। बहुत प्यारी शाम इन्होंने सजाई है और हम लोगों को इनवाइट किया है। और मैं पहले अपना तारुफ करा दूँ। इट्स मी फ़रा लतीफ़, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर
और यहाँ पर हम स्पेशली उज़्मा साबिर और रहमतुल्लाह मीमन के इनविटेशन पे आए हैं, क्योंकि ये हमारे ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन रहमतुल्लाह मीमन साहब और उज़्मा साबिर, जिनकी ये सारी कोशिशों की वजह से इतनी प्यारी शाम अरेंज हुई है। थैंक यू सो मच। जी मैम, आप भी थोड़े से फ्यू लाइन्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ टेलीविज़न आर्टिस्ट फ़ातिमा रिजवी और आरजे रेडियो एंड कॉम्पेयर, और ये हर साल की तरह इस साल भी आइकॉन अवार्ड जो हैं बड़ी ख़ूबसूरती से इसे सजाया गया है। उज़्मा साबिर और रहमतुल्लाह मेमन साहब ने, इनकी बहुत अच्छी ये काविश है और बहुत ही खूबसूरत इवेंट होता है ये, और हमें पूरा साल जो है ना इस इवेंट का इंतज़ार रहता है कि ये इवेंट कब होने जा रहा है। लास्ट इवेंट नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये इवेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह इनको बहुत बहुत मुबारकबाद इवेंट करने के लिए। और हम ख़ास तौर पे इन्होंने हमें इनवाइट किया है, हम दोस्तों को, और हम आए हैं इनके इनवाइट करने पे, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शाम है। अभी आप जैसे जैसे देखते जाएंगे हमारे सितारे और भी आते जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू सो मच। आइकन ऑफ द नेशन अवार्ड में हमारे साथ है मोस्ट फेवरेट एक्टर असलम साहब। जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे? आइकन के हवाले से आइकन द 7th आइकन अवार्ड, 7th आइकन ऑफ द नेशन अवार्ड, और मैं पहले अवार्ड से ही इनके साथ हूँ, रहमतुल्लाह मेमन साहब एंड उज़्मा साबिर, और जब तक ज़िंदगी है इनसे मेरा एक है मुआहिदा कहूँ, वादा कहूँ, मोहब्बत कहूँ या ब्लेसिंग कहूँ, बस इनके साथ है, क्योंकि इनके पहले अवार्ड में ही जो ये मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद से मैं इनके साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क से बाहर हूँ, कराची से बाहर हूँ। ये आज 26 तारीख को हो रहा, नहीं तो हमेशा 23 मार्च को होता है, जिस दिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है। तो कराची में इस अवार्ड की एक वैल्यू है, और आइकॉन अवार्ड जो है वो हमेशा आइकन को दिया जाता है जिन्होंने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की हो या नेशनल लेवल पे शोहरत हासिल की हो। एंड अल्लाह ब्लेस यू रहमतुल्लाह मेमन साहब, उज़्मा साबिर साहिबा, सलामत रहें, खुश रहें। ज़िंदगी है मेरी तो मैं आपके साथ हूँ। कितने तूफ़ान आए, कितनी प्रॉब्लम आई, लेकिन हमेशा अपने इरादे मुस्तहकम रखिए। ऑलवेज आई एम विथ यू। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह सर। आइकन ऑफ द नेशन में अदनान साहब हैं, आइए इनसे जानते हैं कमेंट्स। जी सर। Sir, this is an excellent function, and I just see the celebrities, waiting for the celebrities, because you know the crowd. You can see the crowd. Crowd is very low. It's not too high. Time being is I know it's not time being. It's not time being. Just waiting for good faces. Thank you. This is very important. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Another one is Mr. Nadeem. जी नदीम साहब, क्या कमेंट्स करेंगे आइकॉन के हवाले से? कोई अच्छी लाइन? इट्स अ ग्रेट इवेंट एंड पर्टिकुलरली फॉर द वुमेंस। मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में जिस तरह वुमेंस के मामले में जो इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए ये आइकॉन अवार्ड पर्टिकुलरली फॉर द वुमेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैं समझता हूँ। और बहुत अच्छा ये रहमतुल्लाह मेमन साहब और उज़्मा साबिर ये माशाल्लाह हर साल ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ये इनकी बड़ी डेडिकेटेड और कमेंडेबल एफर्ट है जो माशाल्लाह इन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। एंड यू कैन सी योरसेल्फ माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ऑफ द नेशन में है मोहसिन साहब, आइए इनसे जानते हैं और इनकी कंपनी के हवाले से चीज़ों को समझते हैं। जी सर। थैंक यू, मुझे इनवाइट किया गया। एक्चुअली नारकिन्स जो क्लोथिंग ब्रांड है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी आउटलेट्स मौजूद हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक दें बेस्ट प्राइजेस के अंदर। इस वक्त आवाम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत हाई प्राइजेस में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और वो इतने प्रीमियम भी नहीं होते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक हो, बेस्ट प्राइस में हो, और एक विन विन सिचुएशन हो हमारे लिए भी और हमारे कस्टमर्स के लिए। श्योर सर। आइकॉन के हवाले से 2 लाइन सर। आइकॉन अच्छा है, हौसला अफजाई है। जो ब्रांड्स अच्छे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके हौसला अफजाई के लिए एक अच्छा अमल है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आइकन ऑफ द नेशन में शहीद साहब हैं, आइए इनसे जानते हैं फ्यू लाइंस। जी शहीद, क्या कहेंगे आइकॉन के हवाले से? माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अवार्ड हैं, एंड काइंड ऑफ रहमत भाई के केयर ऑफ मैं आया हूँ यहाँ पे, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मैनेज किया आप लोगों ने। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। आइकन ऑफ द नेशन में एक और सेलिब्रिटी, आइए जानते हैं इनसे आइकॉन के हवाले से। जी मिस। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम तनवीर अब्बासी है और मैं यहाँ पे इसलिए नॉमिनेट की गई हूँ क्योंकि 2009 से जो है मैं माशरे की खिदमत कर रही हूँ, सोशल सेक्टर से हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और सहकार फाउंडेशन ट्रस्ट
और रेडिएंट सोशल वेलफेयर की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सदर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, और औरत घर के नाम से एक शेल्टर होम चला रही हूँ, और सहकार एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के नाम से हमारे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं। तो शायद रहमत मेमन साहब ने जो है वो मुझे इसीलिए चुना है, और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ इनको और अप्रिशिएट भी करती हूँ। इन्होंने इतना अच्छा हर साल ये करते हैं, ये प्रोग्राम करते हैं, और मैं समझती हूँ कि अप्रिसिएशन जो है ना ये होनी चाहिए, और अप्रिसिएशन जो है हमें और एक स्टेपन करती है, डिज़र्व भी करती हैं आप मैम। सो नाइस ऑफ यू बीइंग हियर, प्लीज़ जॉइन अस। थैंक यू मिस, अल्लाह हाफिज़। सॉरी, आइकॉन ऑफ द नेशन में आइए एक और कमेंट जानते हैं। जी मिस, कैसा लग रहा है आइकॉन अवार्ड में आके? अच्छा लग रहा है, नाइस गैदरिंग। क्या कमेंट्स करेंगी आइकॉन के हवाले से, फ्यू लाइंस? इट्स रियली नाइस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके, और जो प्रोग्राम है वो बहुत डिसेंट और अच्छा है। थैंक यू सो बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइकॉन ऑफ द नेशन में एक और गेस्ट के साथ। जी सर, क्या कमेंट्स करेंगे हमारे आइकॉन के हवाले से? जी देखिए, मैं काफ़ी सालों से उस अवार्ड को ऑब्ज़र्व तो कर रहा था। मुझे बहुत खुशी होती है कि ये लोग जो हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और सोसाइटी में जो बेहतर काम करने वाले हैं उनको याद करके फिर अवार्ड देते हैं। देखिए, असल वजह यह है कि हम जो एज ए पाकिस्तानी कौम जो है ना वो मुर्दा कौम है। लोग मर जाते हैं फिर हम उनको याद करते हैं, ज़िंदा लोगों को बहुत कम याद किया जाता है। ये अच्छी बात है कि मेमन साहब और उज़मा साहिबा ने ज़िंदा लोगों को याद करके उनके लिए अवार्ड का सिलसिला शुरू किया है, जो एक बहुत बायस फ़ख्र की बात है, बायस मुसरत की बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइकॉन ऑफ द नेशन में एक और गेस्ट से मिलते हैं। जी मिस, कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, और काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन है यहाँ लोगों की, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब यहाँ। एंजॉय करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइकॉन ऑफ द नेशन में एक और गेस्ट जानते हैं उनसे कमेंट। जी मिस, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आइकॉन अवार्ड्स जब से स्टार्ट हुए हैं, इनका फर्स्ट इवेंट भी जो था वो मैंने अटेंड किया था, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिल सका कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन आज जो है वो मैंने स्पेशली टाइम निकाला है, क्योंकि मुझे पता है कि ये अवार्ड खासा क्रेडिबल है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अवार्ड जो है उसको ज़्यादा वो नहीं दी जाती कि पता नहीं वो सच में मिल रहा है कि वैसे ही है। तो इन पे मुझे यकीन है कि नहीं, ये फिर भी जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर मिस, थैंक यू सो मच। आइकॉन ऑफ द नेशन में एक और गेस्ट से मिलते हैं और जानते हैं कमेंट। जी सर, कैसा लग रहा है यहाँ? जी बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक लतीफ़ है और मैं पार्ट हूँ सजन ग्रुप का। तो आज का ये बहुत अच्छा इवेंट रहमतुल्लाह साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। चलें, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर, एंजॉय करें, थैंक यू सो मच। आइकॉन अवार्ड में हमारे साथ एक रिक्वेस्ट है, जानते हैं उनके हवाले से। जी बस। जी सलाम, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रही हूँ, बट अरेंजमेंट इज़ क्वाइट गुड, और इंशाल्लाह विल अटेंड मोर एवरी टाइम। सो होना चाहिए, आइकॉन्स के लिए ये सेलिब्रेशंस होनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हों और फर्दर आइकॉन्स क्रिएट हों हमारे। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू मिस, टेक केयर। आइकॉन ऑफ द नेशन में एक और गेस्ट जानते हैं कमेंट। जी सर, कैसा फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 7th आइकॉन अवार्ड, यकीन कीजिए कि बीच में वक्फा था तो बड़ी कमी महसूस हुई, लेकिन फिर ये आए हैं और एक बहार आ गई है, बहार के मौसम में बहार आ गई है, और ऐसा आइकॉन अवार्ड जिसका लोगों को बेचैनी से इंतज़ार रहता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत उज़मा और रहमत भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वो करते हैं, और आप जैसे अच्छे लोग, अच्छे एंकर और अच्छे जो हैं मीडिया हाउसेस के लोग जब इसको कवरेज देते हैं तो यकीन उसमें 4 चांद लग जाते हैं। थैंक यू फॉर नाइस वर्डिंग सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइकॉन ऑफ द नेशन में हमारे साथ है बहुत फेमस मोहम्मद अली शेखी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है यहाँ के? मैं अभी तक तो सही लग रहा है, सो फार सो गुड। सर, कोई अच्छे से कमेंट्स कर दें हमारे आइकॉन के हवाले से। भाई ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये पजीराई है आर्टिस्टों की, और यही तो हमारी जो मेहनत का सिला यही होता है। पैसा तो ज़रूरत के तहत होता ही है, मगर दिस इज़ व्हाट कीप्स अस अलाइव। डेफिनेटली डिजर्व इट सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।
और नेशनल आइकन अवार्ड में एक और गेस्ट से बात करते हैं। जी मिस, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महर जमाल मिर्ज़ा और मैं अभी भी यहाँ आई हूँ और रियली इट्स अ वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट। बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये 7 आइकन अवार्ड्स हैं, हर दफ़ा बड़े कामयाब हुए हैं और इस बार भी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे और कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू मिस। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट गेस्ट के साथ। आइए देखते हैं इनके कॉमेंट्स। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आइकॉन ऑफ द नेशन अवार्ड्स ये बिलाशुबा पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है, ख़ास तौर से हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान तबका है या उसके अलावा जो भी जिन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में कारनामे अंजाम दिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। और ये सबसे बड़ी बुनियादी बात ये है कि इन्होंने हमारे जो टैलेंट की, जो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में टैलेंट है उसकी भरपूर तरीके से हौसला अफजाई की है। इसके हम इंतहाई मशकूर हैं कि और बहुत अच्छा एक पैगाम यहाँ से जा रहा है कि बी पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइकॉन ऑफ द नेशन में गेस्ट के साथ हाजिर हैं। जी सर, क्या कमेंट्स करेंगे आइकॉन के हवाले से? आइकॉन के से अवार्ड्स फंक्शन होने जा रहे हैं, ये होने चाहिए बिल्कुल। ये बहुत अच्छी इनकी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा स्टेप इनका। ऐसे अवार्ड में जो हमारे यूथ है, जो हमारे जो मीडिया पर्सन है, जो शोबिस में काम करते हैं, उनको जो अवार्ड मिलते हैं तो वो बहुत खुशी की बात है उनके लिए। उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको मोटिवेशन मिलती है। तो आई थिंक कि ये ऐसे अवार्ड होने चाहिए। चलें, सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।